Hello everyone, welcome to the class once again. In today's class, we are going to discuss about MNCs, what effect they cause to the home country and what effect they cause to the host country. We'll understand what is host country, what is home country, and what are the advantages when MNC comes to a host country, and what are the disadvantages for the host country, what are the advantages for the home country, and what are the disadvantages for the home country. And before starting the lecture, I'll share with you the topics which we have covered till now. We have covered meaning of international business, nature of international business, significance of international business, drivers of international business, players in international business. Okay, these topics we have already discussed, and now today we will discuss the next topic, which is MNC benefits and problems to host country and home country, right? Okay, so let's begin. What do you mean by a home country? Okay, so home country means the place where the firm or an MNC belongs to. Okay, so for example, Google or Microsoft is primarily based or registered in United States of America. So the home country for Microsoft or Google is US. Okay, but Microsoft and Google has set up their offices across the globe. In India also they have office in Gurgaon and in Bangalore, and therefore India is the host country for Microsoft or Google, right? So in international business, a firm which belongs to one country called home country goes abroad and invests in that country called host country and employs the factor of production of that country essentially with the help of the investment. So this means that whenever Google comes to India, it will use the resources of India in terms of human resource. Okay, so they will hire the employees from India. They will use infrastructure which is created by Indian condition. So the factors of production they will use, which is primarily based in इंडिया और होस्ट कंट्री, राइट? सो हम लोग को बेसिकली ये क्लियर हो रहा होगा कि जो है होस्ट कंट्री किसको बोला जाता है और होम कंट्री किसको बोला जाता है. तो होम कंट्री जो है जहां से जो है कंपनी आती है, राइट, जहां पे वो रजिस्टर्ड होती है और वहां से वो दूसरी कंट्रीज में बिजनेस करने आती है. तो इसलिए जो है गूगल के लिए होम कंट्री यूएस हो जाएगा और होस्ट कंट्री इंडिया, चाइना, वियतनाम, श्रीलंका, जहां पे भी वो अपने ऑफिसेस सेटअप करता है, राइट? अब हम लोग देखते हैं कि जब एमएनसी किसी कंट्री में जाती है जिसको होस्ट कंट्री बोला जाता है, तो उस कंट्री के लिए वो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. मान लीजिए कि अगर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में आती है तो उससे इंडिया को क्या फायदा होता है, ठीक है? तो बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं. आपको पता होगा और आप लोग जो है न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे, इकोनॉमी की न्यूज़ देखते होंगे, तो उसमें हम लोग से बात की जाती है कि हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करती है कि बाहर से लोग आएँ, बाहर की कंपनीज आएँ और इंडिया में सेटअप करें अपना बिजनेस. उससे हमारा भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, फॉरेन कैपिटल आता है और एफडीआई आता है. तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट जो है हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा ऑलरेडी जानते हैं, और हम लोग एक एक करके हम लोग और भी जो है बेनिफिट्स देखेंगे जो कि होस्ट कंट्री को होता है. तो याद रखिएगा, यूएस जब हम जो है एमएनसी की बात करते हैं और एमएनसी का एग्जांपल मान लीजिए गूगल है, तो गूगल के लिए होम कंट्री यूएस है और होस्ट कंट्री इंडिया है, फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो यहाँ अगर बात की जा रही है बेनिफिट टू होस्ट कंट्री, तो यहाँ हम एक तरीके से समझते हैं इंडिया में अगर ऑफिस सेटअप होता है तो इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होता है, राइट? तो सबसे पहला बेनिफिट जो हम लोग देखते हैं वो है एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड, राइट? एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड. तो एमएनसीज जो होती हैं वो अपने साथ जो है एफडीआई लेके आती हैं और
जब ये अपना ऑफिसेज यहाँ पे सेटअप करती हैं तो यहाँ के जो है लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। जब यहाँ पे लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं अपना काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हर लेवल पे क्रिएट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिलीवर लिमिटेड, ये सब कंपनीज जो है इंडिया में आती हैं, तो अपना जो है लार्ज स्केल ऑफिस क्रिएट करेंगी। जब ऑफिस क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है कि जो है अपार्ट फ्रॉम द पीपल दे विल हायर फॉर देयर पर्पस, जैसे कि जो है आईटी प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, वो तो बहुत नेचुरल सी बात है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वो बिल्डिंग बनेगी तो उसमें जो है यहाँ पे जो रियल एस्टेट वाले होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे। फिर जो है छोटे छोटे पेंटर्स, मजदूर, ये सब इंडियंस ही होंगे जो कि जो है वहाँ पे जिनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। फिर आसपास जो है कुछ रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, वो भी जो है इंडियंस ही उसको जो ऑपरेट करेंगे। तो इस तरीके से लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है क्रिएट होती है होस्ट कंट्री में, राइट। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इंक्रीजेस। तो एमएनसीज ब्रिंग इन मच नीडेड कैपिटल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ developing countries. In fact, with the entry of MNCs, inflow of foreign capital is automatic. FDI and FII in India is a good example. तो फॉरेन कैपिटल आने के दो तरीके प्राइमरली हम लोग देखते हैं। एक है FDI which is foreign direct investment, और FII which is foreign institutional investment. तो FDI का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली कंपनीज जो है अपना इन्वेस्ट कर रही हैं और कैपिटल गुड्स के फॉर्म में इन्वेस्ट कर रही हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग्स क्रिएट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही हैं, तो वो एफडीआई का एक एग्जांपल होता है, ठीक है। उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कंपनीज कर रही हैं। एफआईआई का मतलब जो है कि कंपनीज जो है दूसरे बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में जो है कंपनीज में शेयर के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यानी कि कंपनीज के शेयर बाय कर रही हैं। और कंपनीज के शेयर बाय करने में क्या होता है कि वो पैसे देती हैं, उसी से शेयर परचेज होते हैं। तो इस तरह से भी फॉरेन कैपिटल इंड्यूस होता है। तो जब एमएनसीज इंडिया में आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी यहाँ पे कोई फॉरेन की कंपनी है, एमएनसी है, मान लीजिए कि डायरेक्टली वो जो है इंडिया में कोई ऑफिस सेटअप नहीं करना चाहती है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, तो वो टाटा के साथ कोलैबोरेट करके उनके शेयर्स उस पर्टिकुलर एडवेंचर में या उस पर्टिकुलर वेंचर में जो है खरीद के और उसके थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देखता है। तो वो एफआईआई का एग्जांपल हो जाता है। मगर फॉरेन कैपिटल तो आ ही रहा है, भले ही डायरेक्टली जो है वो कंपनी जो है यहाँ पे जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर रही है, ठीक है। और कुछ कंपनीज होती हैं जो एफडीआई के थ्रू यानी कि डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके जो है अपना बिजनेस सेटअप करती हैं। तो जब एमएनसीज आती हैं तो फॉरेन कैपिटल भी इंक्रीज होता है। तो जब फॉरेन कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो जो है हमको बहुत हेल्प करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, जो आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, ओके। तो जब फॉरेन कैपिटल इंक्रीज होता है तो उससे हमारा जो है कंपनी का जो डेफिसिट होता है, जो कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का होता है, वो भी रिड्यूस होता है धीरे धीरे, ओके। फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव्स। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब बाहर से कंपनीज आती हैं तो वो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो ऐसे एरियाज में भी जो है अपना बिजनेस करे जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है, जैसे अनएक्सप्लोर्ड कोल माइंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है जो माइनिंग के एरिया में ऑपरेट कर रही है, दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, ओके। मगर CIL के पास जो है हमको पता है कि बहुत अपडेटेड टेक्नोलॉजीज नहीं अवेलेबल है। तो जब बाहर से कोई कंपनी आती है, चाहे ऑस्ट्रेलियन माइंस की कंपनी हो, चाहे यूरोपियन कोल माइंस की कंपनी हो, जब वो यहाँ पे आएगी तो फिर वो क्या होगा कि जो हमारे कोल एरियाज या कोल बेल्ट ऐसी है जहाँ पे हम लोग अभी भी जो है माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं और अपने रिसोर्स को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे जो है वो कंपनीज आएंगी और वहाँ पे एक्सप्लोरेशन का काम शुरू हो सकता है। उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे काम शुरू हो सकता है और हम लोगों को रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखने को मिल सकता है, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है जो हमें बेनिफिट होता है होस्ट कंट्री के लिए, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्प्रूवमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बेसिकली क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और FDI, FII जो होता है, इंडिया से कितना कैपिटल जो है
बाहर जा रहा है और बाहर से कैपिटल कितना इंडिया में आ रहा है, कितना जो है फंड, मतलब हम लोग के रिसोर्स जो हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी जो है हमारा कितना बाहर गया और कितना इंडिया में आया, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो। तो जाहिर सी बात है, अगर मैक्सिमम कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमको अच्छा दिखाई पड़ेगा, पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा, निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हमारा होने लगता है, जब बहुत ज़्यादा निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, तो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हमारा जो है निगेटिव हो जाता है और हम लोग जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो उससे जो है कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव होने का मतलब होता है कि कंट्री के पास जो है फॉरेन कैपिटल बहुत ही कम रह गया है और ज़्यादा इंपोर्ट करने के लिए उसके पास बहुत कम रुपए बचे हुए हैं। इसको आप बहुत छोटे से एग्जांपल से इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिया को जो है फॉरेन कैपिटल की क्यों जरूरत पड़ती है। ओके, तो इंडिया को फॉरेन कैपिटल यानी बेसिकली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स क्यों जरूरत पड़ती है। तो इंडिया को फॉरेन कैपिटल की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि इंडिया को कुछ ऐसे जो है गुड्स हैं जो कि इंपोर्ट करने होते हैं अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। उसमें से एक गुड जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज क्रूड ऑयल और पेट्रोल। ओके, तो इंडिया के पास अपना खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस या रिसोर्स ऑयल एंड पेट्रोलियम का नहीं है। इंडिया ऑलमोस्ट 80% जो है ऑयल वो बाहर से इंपोर्ट करता है। तो अगर बाहर से उसको इंपोर्ट करना है तो जाहिर सी बात है, बाहर अगर वो इंपोर्ट करेगा तो बाहर वालों को उसको जो है मनी भी देना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। लेकिन वो पैसे किस टर्म्स में होंगे? पैसे जो है रुपीस के टर्म्स में नहीं, रुपए दे के जो है पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं। वो आपको जो बाहर जब किसी जब मान लीजिए कि आपको मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशियन कंट्री से जो है आपको ऑयल परचेज करना है, चाहे कुवैत हो गया, चाहे इराक हो गया, चाहे ईरान हो गया, चाहे सऊदी अरेबिया हो गया, तो यहाँ से अगर आपको जो है पेट्रोल परचेज करना है तो वहाँ पे डीलिंग जो इंटरनेशनल मार्केट में होती है वो डॉलर्स के टर्म में होती है, राइट। तो जब आप डॉलर्स के टर्म में डील कर रहे होंगे तो आपको डॉलर्स चाहिए भी, तो वो डॉलर आपके पास आएगा कैसे? आप वो अर्न करते हैं। जब आप कोई चीज बाहर बेचते हैं, यानी कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज, तब आप वो जो है डॉलर्स अर्न करते हैं, कमाते हैं। तो जब वो आप कमाई करेंगे डॉलर्स की, तब वो आप जाएंगे अपना पेट्रोलियम रिसोर्स खरीदने के लिए। जब आप पेट्रोलियम खरीदेंगे तब आप जो है यहाँ पे उसको इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होगा तभी जो है बिजनेस यहाँ पे और इकोनॉमी जो है ठीक से रन कर पाएगी। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब एक्सपोर्ट होगा तभी फॉरेन कैपिटल आएगा, जब फॉरेन कैपिटल आएगा इंडिया के पास तो फिर जो है इंडिया पेट्रोलियम रिजर्व खरीद सकता है। तो जब पेट्रोलियम रिसोर्स खरीद सकता है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी जो है इकोनॉमी रन कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे एमएनसी हमको कैसे हेल्प करता है? जब एमएनसी आता है तो वो फॉरेन कैपिटल लेके आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। और जब यहाँ पे जो है बेनिफिट होता है तो उसका पोर्शन कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी जाता है, राइट। तो फिर जो है जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आता है तो इंडिया के पास इसी तरीके से जो है जब ज्यादा जो है एफआईआई या एफडीआई के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी अच्छा रिसोर्स अपना रिजर्व फॉरेन कैपिटल का डेवलप होता है। अगर बिल्कुल भी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा हमारे पास तो हमको जो है फॉरेन कैपिटल की बहुत मेजर शॉर्टेज हो जाएगी। और जब शॉर्टेज हो जाएगी हमको तो जाहिर सी बात है कि हमारा रिसोर्स जो होगा वो धीरे धीरे फॉरेन कैपिटल का डिप्लीट होता जाएगा। डिप्लीट होने का मतलब है कि हमको पेट्रोलियम रिजर्व की तो जरूरत है ही, तो हमारा रिजर्व धीरे धीरे खाली होता जाएगा और फॉरेन कैपिटल हमारे पास आ नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा और नेगेटिव में जाएगा। और नेगेटिव में बहुत ज़्यादा जब चला जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट हो जाती है, जिसका हम लोगों ने एग्जांपल एक बार 1990s के टाइम में देखा था, राइट। तो और उससे जब ये ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फाइनली आईएमएफ के पास जाना पड़ता है और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो कुछ हम लोगों को फंडिंग करें। और फंडिंग जाहिर सी बात है जब आईएमएफ करता है तो उसकी बहुत सारी शर्तें भी होती हैं जिससे जो है कंट्री को कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट झेलना पड़ता है। ओके, तो बेनिफिट ऑफ जब बहुत अच्छी एमएनसीज जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्प्रूव होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है टेक्निकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो एमएनसीज जब इंडिया में आती हैं या किसी भी जो है होस्ट कंट्री में आती हैं
तो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, और जब यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करती हैं तो जो है वो टेक्नोलॉजी वहाँ के लोग भी सीखते हैं और दूसरी कंपनीज भी सीखती हैं, और जब जो है कंपनीज सीखती हैं, वहाँ के लोग, लोकल लोग सीखते हैं, तो इससे क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है उनके पास भी नई टेक्नोलॉजी आती है और वो भी टेक्निकली धीरे धीरे एडवांस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी कंट्री के लिए, अगर उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना है, ठीक है, तो वो एमएनसीज को जो है अपने यहाँ इनवाइट करती है और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और धीरे धीरे वो भी वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी बनाने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट है जो बेनिफिट है, मैनेजरियल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो एमएनसीज एम्प्लॉय लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस across the globe are used in the company. People employed by MNCs do a lot of research in management. In a way, they help to professionalize the management along latest lines of management theory and practice. This leads to managerial development in host country. Okay. इसका मतलब होता है कि जो MNCs हैं वो जब किसी होस्ट कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लेके आती हैं, चाहे वो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हों, चाहे बेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिसेस हों। तो वो जब लेके आती हैं तो उससे मैनेजरियल डेवलपमेंट भी होता है, और बहुत सारी मतलब रिसर्च होती है, और लेटेस्ट जो है मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस भी डेवलप होती हैं, किस तरीके से काम को करना है, किस तरीके से शॉर्टेस्ट वे में मिनिमम रिसोर्स में जो है हम लोग को जो है प्रोडक्शन जो है करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी जो लर्निंग होती है वो भी जो है होस्ट कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद की चीज होती है, और ये सिर्फ वो कंपनी अपने यहाँ ही नहीं रखती है उन सब बेस्ट प्रैक्टिसेस को, वो प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो धीरे धीरे होस्ट कंट्री के जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक भी जो है ट्रांसफर होती हैं, और जो है वहाँ भी इम्प्लीमेंट होती हैं, और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। राइट, नेक्स्ट है एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। तो लोकल मोनोपोली जैसे फॉर एग्जांपल 90s के पहले अगर आप देखें तो फिर हम लोग के पास अगर जो है कम्युनिकेशन की बात की जाए, टेलीफोनी की बात की जाए, तो टेलीफोनी में जो है इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस थी, दैट वाज फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या बीएसएनएल। तो ये बीएसएनएल तो बाद में बना है, लेकिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन होता था। तो अगर हम लोग को जो है टेलीफोन कनेक्शन चाहिए होता था तो 2-2 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल की जो है एप्लीकेशन देनी होती थी, क्योंकि कोई कंपटीशन था नहीं। ठीक है, तो उस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन होता था वो भी उस तरीके से एफिशिएंट नहीं था, जल्दी जो है कस्टमर सेंट्रिक नहीं था, जल्दी कस्टमर को सर्व नहीं करता था, और जो है बहुत ही स्लो, और रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा करप्शन भी था। एक सिंपल टेलीफोन लगाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा करप्शन फेस करना पड़ता था कस्टमर को। लेकिन जब जो है बाहर की कंपनीज और जो है मार्केट ओपन किया गया, बाहर की कंपनीज आई और वोडाफोन आया, या इंडिया की भी जो कंपनी जो सेटअप हुई धीरे धीरे, तो फिर जो है उन्होंने लोकल मोनोपोली को एंड किया। राइट, लोकल मोनोपोली जब एंड हुई तो जो है जो लोकल कंपनीज थी उन्होंने भी जो है सडनली जो है उस चीज़ को फेस किया, कंपटीशन को, और उस कंपटीशन को फेस करने के बाद उन्होंने भी अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव किया और कस्टमर सेंट्रिक बने। और आज की डेट में आपको पता है कि जो है कस्टमर सेंट्रिक इतना ज़्यादा हो गया टेलीकम्युनिकेशन कि आपको एक सिंपल आपको कॉल करनी है और आपके घर तक जो है सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। राइट, तो इस तरीके से जब लोकल मोनोपोली एंड होती है तो एक जो हेजिमनी एक तरीके से होती है किसी एक सिंगल फर्म की, वो खत्म होती है। तो वो एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करता है, कस्टमर की सर्विसेज को भी इम्प्रूव करता है, और बहुत सारे जो है कस्टमर्स को पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होता है? जब एमएनसीज नए प्रोडक्ट्स लेके आती हैं, नई सर्विसेज लेके आती है, तो क्या होता है कि जो है लोग परचेजिंग पावर जो होती है जिन लोगों की, वो नए प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं, और धीरे धीरे जो है हमको ये भी देखने को मिलता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर वो सामान ही नहीं अवेलेबल था पहले, ठीक है, तो लोग उसको परचेज कैसे करते हैं? ठीक, तो जब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोग परचेज करते हैं तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है लोगों का। ठीक है, सिमिलरली जब एमएनसीज आती हैं तो जॉब क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा, और जब जॉब क्रिएट होती है तो लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। जब इनकम इंक्रीज होती है तो लोग
अपने जो है नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज ट्राई करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्वालिटी सर्विसेज इंप्रूव करते हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करते हैं, हेल्थ केयर इंप्रूव होती है, और इस तरीके से इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलता है, राइट। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राइट। तो नेक्स्ट बेनिफिट जो होता है वो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। तो एमएनसीज ब्रिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, जिस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत पहले, इससे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था। तो एमएनसीज ब्रिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज which in turn reduces unnecessary armed conflicts between nations and promotes cultural unity and integration। तो होता है क्या है कि जब एमएनसीज जो है किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं, राइट, तो क्या होता है कि दो इकोनॉमीज प्रैक्टिकली इंटीग्रेट हो रही होती हैं। यानी एक कंट्री जब एमएनसीज आ रही है तो होस्ट कंट्री के लिए इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आप वो देख सकते हैं, राइट। होस्ट कंट्री कभी भी नहीं चाहेगा कि इन बेनिफिट्स को जो है वो जो है लूज करे। तो जब वो लूज नहीं करना चाहता है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जो है होम कंट्री वाली गवर्नमेंट के साथ जो है अच्छे टर्म्स एंड रिलेशंस रखना चाहिए। सिमिलरली होम कंट्री जो है जहां से जो कंपनी आई है उसके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे जो हम आगे देखेंगे। तो वो होम कंट्री भी नहीं चाहेगी कि जो है जिस कंट्री में जो हमारी कंपनी गई है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ या वहाँ के लोगों के साथ जो है हम कुछ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में पड़े या कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इससे क्या होता है कि ये इंटरनेशनल ब्रदरहुड कल्चर की जो है भावना होती है वो ऑटोमेटिकली जो है जनरेट होती है, और अननेसेसरी आर्म कॉन्फ्लिक्ट और जो है ये सब चीज़ें जो है ख़त्म होती हैं, और एक दूसरे के कल्चर को लोग अप्रिशिएट करते हैं, और जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस फॉर होस्ट कंट्री क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस जो है वो भी जो है काफ़ी लेवल पे जो है हम लोग को देखने को मिले हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है डेंजर फॉर लोकल इंडस्ट्रीज। तो एमएनसीज आर बैक्ड बाय ह्यूज इकोनॉमिक रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। दिस पोजेस अ डेंजर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज which are still in process of development. Domestic industries cannot face challenges posed by MNCs. Many domestic industries have to wind up as a result of threat from MNC. Thus, MNCs give a setback to इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ होस्ट कंट्री। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे आप छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज को मान लीजिए, या सिमिलरली जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस स्टेज में नहीं है लोकल इंडस्ट्रीज, उनके साथ क्या होता है कि जब एमएनसीज आ रही है तो एमएनसीज जो है बहुत ह्यूज इकोनॉमिक रिसोर्स होता है उनके पास, टेक्नोलॉजी होती है, और रिच जनरली हम लोगों ने देखा है कि रिच कंट्रीज से ही जो है एमएनसीज आती हैं। तो वो करती क्या है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं तो उनके साथ उनका जो है सीधे डायरेक्ट कंपटीशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो है इंटरनेट की, मान लीजिए हम जैसे इंडिया के केस में अगर हम लोग देखें तो इंडिया के केस में जो है अगर यूएस से कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनी आ रही है, मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई कंपनी आ रही है, ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इंडिया में जो है कंपनीज जो हैं वो बहुत ही एकदम स्टार्टिंग स्टेज में है, ठीक। और अगर जो है बाहर से कोई यूएस की कोई कंपनी है जो बहुत ही एडवांस स्टेज में वो इंडिया में आ रही है और जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू करती है, तो इंडिया की जो कंपनीज हैं वो तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में, उसके पास हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना वो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, तो यूएस की कंपनीज के प्रोडक्ट सब लोग परचेज करना चाहेंगे, राइट। तो फिर जो है इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो कंपनी जो हमारी लोकल बैक्ड इंडस्ट्री होगी, लोकल इंडस्ट्री होगी, वो वहां से मतलब अपना बिजनेस शायद वाइंड अप कर दे, राइट, क्योंकि उसके पास इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो जो है एमएनसी के साथ कॉम्पीट कर सके। तो लोकल इंडस्ट्री के साथ ये बहुत डेंजर होता है। सिमिलरली एक डेंजर ये भी देखा गया है कि जो है जो एमएनसीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी लंबे टाइम तक जो है बहुत ही वो चाहे तो जो है सस्ते दामों पर भी बेच सकती है, तो लोकल इंडस्ट्री इस तरीके से भी नहीं जो है उससे कॉम्पीट कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज प्रॉफिट ऑफ एमएनसीज इज शिफ्टेड टू होस्ट कंट्री। तो एमएनसीज अर्न ह्यूज प्रॉफिट। Repatriation of profits by MNCs adversely affect the foreign exchange reserves of the host country, which means that a large amount of foreign exchange goes out of the host country. तो MNCs जो प्रॉफिट कमाती हैं जाहिर सी बात है वो अपने होम कंट्री ले जाती हैं, और ये एक तरीके से एडवांटेज है होम कंट्री के लिए जो हम आगे देखेंगे भी, मगर क्योंकि वो होस्ट कंट्री से ही वो प्रॉफिट अर्न करेगी, यहाँ के लोग अगर जो है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के लोग अगर फॉरेन कंपनीज के जो है प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं,
तो वो लार्ज प्रॉफिट जो है होता है, उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो जो है अच्छा खासा अमाउंट जो है वो अपने होम कंट्री को ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैकडी है या केएफसी है, तो ये है तो यूएस बेस्ड कंपनी, तो जब वो जो है आप उसके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं जिसके, तो फिर उसका जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो यूएस ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से इंडिया से लार्ज प्रॉफिट जो होता है वो बाहर जाता है, और इस तरीके से भी होम कंट्री के लिए वो डिसएडवांटेजियस होता है। No benefit to poor people. MNCs usually come for profit, therefore they produce only those things which are used by rich. Therefore poor people of host country do not get generally any benefit out of MNC. तो जाहिर सी बात है MNCs जनरली प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज का प्राइमरीली मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। तो जब वो इंडिया में आती हैं या किसी भी जो होस्ट कंट्री में आती हैं, तो वो ऐसे अपने प्रोडक्ट्स को चाहेंगे कि वो उस क्लास के लिए बनाए जो कि परचेज कर सके, ठीक है। तो रिच क्लास ही जनरली उसकी जो है परचेसिंग पावर अच्छी होती है, तो वो रिच क्लास के लिए जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाते हैं, उसी को टारगेट मार्केट उनका वही होता है। तो इसीलिए जो होता है कि इसीलिए पुअर पीपल के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एमएनसी जनरली डिज़ाइन या डेवलप नहीं करती हैं। तो इससे पुअर पीपल जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत पीछे होते हैं, लेफ्ट आउट होते हैं, और एमएनसीज जब आती हैं तो वो और लेफ्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सर्विसेज से और ज़्यादा अवेयर होते हैं, और ज़्यादा यूज़ करते हैं, और पुअर पीपल और बेरेफ्ट हो जाते हैं उन सर्विसेज को यूज़ करने से। नेक्स्ट है डेंजर टू इंडिपेंडेंस ऑफ होस्ट कंट्री। Rising clout of MNC in host country leads to interference in the internal matters of the country by the company management. तो होता क्या है कि जब MNCs जो होती हैं वो बहुत पावरफुल हो जाती हैं, तो वो इतनी रिच होती हैं कि वो धीरे, अच्छा देखिए पीछे हम लोगों ने पॉइंट देखा है कि लोकल कंपनीज जो लोकल मोनोपोली है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो जब लोकल कंपनीज और लोकल मोनोपोली खत्म हो रही है, तो होता क्या है कि एमएनसीज जो एक तरीके से वो सिर्फ एमएनसीज ही रह जाती हैं वो सब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो एमएनसीज जो है इतनी पावरफुल हो जाती हैं, इतनी रिच होती हैं कि वो कंपनीज के पॉलिटिकल इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर करने लगती हैं, और डिसीजन मेकिंग में वो चाहे वो ब्राइब करके, चाहे वो अलग तरीके से जो है अपना क्लाउड क्रिएट करके जो इन्फ्लुएंस करती हैं पॉलिसी मेकर्स को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, चाहे पॉलिटिशियंस हो गए, और इस तरीके से भी वो कंट्री की इंडिपेंडेंस को जो है खतरे में डालने का काम कर सकती हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका disregard of national interest of host country. So MNCs invest in most profitable sectors and disregard the national goals and priorities of the host country. They do not care for development of backward region and never care to solve chronic problems of host country like unemployment of the poverty. तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है कि MNCs कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती हैं, वो अपना प्रॉफिट मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। अब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है, दैट इज द साइड इफेक्ट, राइट। तो कंपनीज जो है जनरली क्या होता है कि उन जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड होता है वहीं पे वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेलेबल होते हैं उन्हीं को सेल करना चाहेंगे। तो उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं होता है कि वो जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें या बैकवर्ड रीजन को डेवलप करें। तो कभी भी बैकवर्ड रीजन में वो अपने फैक्ट्रीज या अपने ऑफिस नहीं सेटअप करेंगे। जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज हैं उन्हीं में वहीं पे जाके वो अपने ऑफिस सेटअप करते हैं। तो इस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गोल्स होते हैं उसमें कभी भी वो हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। फिर है मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस। तो मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस का मतलब है कि एमएनसीज आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज, दे कैन अफोर्ड टू बियर लॉसेज फॉर अ लॉन्ग वाइल in a hope of earning huge profits once they have ended local competition and achieved monopoly. तो एमएनसीज जो है पावरफुल एंटिटी होती हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक, ये पॉइंट हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि वो दूसरी कंपनीज को जो है एलिमिनेट करने के लिए लंबे टाइम तक प्रोडक्ट्स को जो सस्ते दाम पे बेच सकते हैं, और फिर एक बार जब लोकल कंपनीज जो है वहाँ आउट ऑफ द मार्केट हो जाती हैं तो फिर से वो प्राइस राइज करके जो है अचानक से बहुत ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और इस तरीके से वो अपने माइटी स्टेटस का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक। Next है careless exploitation of natural resources. MNCs tend to use the natural resources of the host country carelessly. They cause rapid depletion of some of the non-renewable natural resources of the host country. In this way, MNCs cause a permanent damage to the economic development of the host country. तो ये आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि MNCs जो होती हैं, जैसे इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कि केरला में कोका कोला ने अपना प्लांट सेटअप किया था, और वहाँ का अंडरग्राउंड वाटर जो फ्रेश अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको जो है बहुत ही ब्राइब करके और केयरलेसली जो इसने एक्सप्लॉइट किया था, और आसपास के जो विलेज थे वहाँ पे जो है वाटर पोल्यूट कर दिया था, और कम उसको जो है
जो रिसोर्स जो है नेचुरल रिसोर्स अंडरग्राउंड वाटर का जो विलेजर्स को मिलना चाहिए था, वो क्लीन वाटर रिसोर्स जो है कोका कोला को दे दिया गया था। और इस तरीके से उन्होंने उस नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया। नेक्स्ट है selfish promotion of alien culture. So MNCs tend to promote alien culture in host country to sell their products. They make people forget about their own culture heritage. That is, in India, example, MNCs have created a taste for synthetic food, soft drinks. This promotion of foreign culture by MNCs is injurious to the health of the people also. तो एक तरीके से ये भी एक पॉइंट है कि जो है वो अपने कल्चर को जो है फोर्स करते हैं और उसी को प्रोजेक्ट करते हैं और इस तरीके से लोकल कल्चर को थोड़ा इग्नोर करते हैं। ठीक है। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल इन सिस्टमैटिक मैनर, एमएनसीज जॉइन हैंड विद बिग बिजनेस houses of host country and emerge as powerful monopolies. This leads to concentration of economic power in few hands. ठीक है। तो धीरे धीरे जो है एमएनसीज जो क्या करती हैं कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के साथ कोलैबोरेट करती हैं और एक पावरफुल मोनोपोली क्रिएट कर देती हैं, और इस तरीके से जो है वो मोनोपोली क्रिएट करने के बाद लोकल एम्प्लॉयज को भी जो है एक्सप्लॉइट करती हैं और कम पैसे पे हायर करने की उनकी प्लानिंग रहती है, राइट। अब एडवांटेजेस क्या होती हैं होम कंट्री के लिए? तो होम कंट्री का एग्जांपल है जैसे यूएस हो गई माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो एमएनसीज यूजुअली गेट रॉ मटेरियल्स एंड लेबर सप्लाईज फ्रॉम होस्ट कंट्री एट लोअर प्राइसेस, स्पेशली व्हेन होस्ट कंट्रीज आर बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो होम कंट्री जो है, जैसे मान लीजिए कि वो यूएस से कोई कंपनी है तो वो चाहे तो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है, तो वहाँ से चीप वे में जो है अपना रिसोर्स जो है ले सकती है, और जो वहाँ पे रिसोर्स जो है वो सस्ते दामों पे खरीद के अपने यहाँ जो है वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है और महंगे दामों पे बेच सकती है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत पहले इंडियन मार्केट के साथ किया था या इंडियन गवर्नमेंट के साथ किया था। तो MNCs can widen their market for goods by selling in host country and increase their profit. They usually have good earnings by way of dividend earning from operations in host country. तो एडवांटेज यही है कि जो है जब यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होते हैं तो वो बहुत लार्ज प्रॉफिट जो है होम कंट्री में ट्रांसफर होता है, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है होम कंट्री के लिए। Through operating in many countries and providing quality services, MNCs add to the international goodwill on which they can capitalize in long run. तो जब बहुत सारी जगह पे ऑपरेट करती हैं तो एक गुडविल भी जनरेट होता है, और इस तरीके से वो सिर्फ इकोनॉमिक के टर्म्स में नहीं, बाकी सारे एरियाज में भी ये गुडविल जो है काम आता है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक एरियाज में हो चाहे डिफेंस एरियाज में हो। तो इस तरह से होम कंट्री जो है अपना ये वाला पॉइंट, जो एमएनसीज वाला जो है पॉइंट होता है, उसको जो है यूज कर सकती है फॉर अदर कॉजेज ऑल्सो, राइट। अब लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? जब एमएनसीज बाहर जाती हैं तो फिर जो है जाहिर सी बात है कि एमएनसी में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, सॉरी होम कंट्री में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट। और जो है जब दूसरा पॉइंट होता है कि जो है होस्ट कंट्री में जो है जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो होम कंट्री के लिए वो लॉस होता है, राइट। दूसरी चीज़ है एमएनसीज वर्क इन डिफरेंट जोग्राफीज, द एमएनसीज फेस प्रॉब्लम्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी मैनेज करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अलग अलग देश हैं, अलग अलग वहाँ के कल्चर हैं, तो उन इश्यूज़ को भी बहुत प्रॉब्लम होती है फेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। फिर एमएनसीज जो है वो जब बाहर जाती हैं तो और भी बहुत सारी एमएनसी के साथ उनका जो कंपटीशन होता है, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें उनका जो है पैसा बेकार में लगता है, चाहे वो ह्यूज मार्केटिंग कॉस्ट हो, तो ये भी जो है एक लेस प्रॉफिट जो है फिर फ्यूचर में जनरेट करता है, राइट। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ होम कंट्री भी देख लिया। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, एंड आई विल बी ज्वाइनिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर with new topic of globalization. Thank you very much.